موجود ہیں ادھر نتھیا گلی کے اندر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب بہت شکریہ. بہت ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کی وقت بڑا کم ہے. So I'll make it very precise. Very happening situation in politics in Pakistan. سب سے پہلے خان صاحب, it's not an interview, it's more like a conversation. سازش جو تھی, باقی چیزوں کی طرف بھی آتے ہیں, بہت سی چیزیں. سازش کا ایک نیریٹو لیا گیا نون لیگ کی جانب سے, شریف فیملی کی جانب سے, وہی نیریٹو لیا گیا جنگ کی جانب سے, وہی نیریٹو لیا گیا آسما جہانگیر صاحبہ کی جانب سے. ابھی کل ان کی پریس کانفرنس اگر آپ نے سنی ہو, نیریٹو یہ ہے خان صاحب کہ کلیئرلی ہو چکا ہے ملٹری نے, اسٹیبلشمنٹ نے جمہوریت کو ڈریل کرنے کے لیے, پاکستان میں سسٹم کو ڈریل کرنے کے لیے آپ کے تھرو, لیٹس بی کلیئر, آپ کے تھرو سپریم کورٹ سے سازش کروائی اگینسٹ دا سسٹم. اب پوسٹ سازش یہ سناریو کہ پارلیمنٹ قائم ہے, وزیر اعظم بھی ان کا ہے, کیبنٹ نے بھی حلف اٹھا لیا, آپ نے اس پروسیس میں حصہ بھی لیا ہے, جمہوریت بھی قائم ہے, سسٹم بھی قائم ہے. تو کیا پوچھنا نہیں چاہیے آپ کو بھی کہ وہ آپ کے اوپر جو الزام لگاتے تھے سازش کا, کیا بنا اس کا؟ دیکھیں حمزہ, اللہ کا شکر ہے کہ جو پینما کے انکشافات تھے یہ ساری دنیا میں ہوئے. یہ پاکستان کوئی واحد ملک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں عالمی سازش تھی ان کے خلاف. یہود و نصارہ بھی آگے تھے نا بیچ میں. کون مانے گا کہ وہ پینما کے وہ جو آئی سی آئی جے کے وہ جو دنیا کے ٹاپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جنہوں نے وہ جو کمپیوٹر ہیک ہوا, پتہ نہیں 11 لاکھ اس میں سے ای میلز نکلی, ان 11 لاکھ ای میلز کو انہوں نے 1.25 سال لگایا سٹڈی کرنے میں. اس کے بعد انہوں نے اس میں سے جو نام لوگوں کے نکالے, جو بڑے بڑے نام تھے, جس میں پھنس گئے ہمارے نواز شریف. اب میں سب سے پہلے تو سازش ہے کہ اس میں برٹش پرائم منسٹر بھی بیچارہ پھنسا تھا, لیکن کیونکہ اس نے کوئی ناجائز چیز نہیں کی تھی وہ بچ گیا. آئس لینڈ کا بھی اس نے استعفیٰ دیا بعد میں, بریکسٹ کا بھی وہ اور تھا, وہ میں فرق بات بتاؤں گا. آئس لینڈ کا پرائم منسٹر آیا, وہ نہیں جواب دے سکا, اس کا بالکل نواز شریف کا کیس تھا, اس کی بیوی امپلیکیٹڈ تھی, نواز شریف کی بیٹی تھی, اس کو ریزائن کرنا پڑا, تو وہ بھی سازش کا حصہ ہو گیا ہوگا. اتنے وزیر گئے, مالٹا کا پرائم منسٹر, یہ سارے پھنس گئے تھے. تو کیا یہ کوئی ایک سازش تھی؟ اچھا پہلے تو یہ سازش کہنا, اس کو یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے. یہ ایک چھوٹا سا کرپٹ سٹیٹس کو لوگوں کو دھوکہ دیتا آ رہا ہے. یہ سٹیٹس کو کے اندر اخبار نویز, آپ نے نام لیا میر شکیل الرحمان کا, یہ ملوث ہے. اس کے اندر کرپٹ پولیٹیشن سارے ملے ہوئے ہیں. یہ جو اقامہ ہولڈرز ہیں 70 ہیں, سنے میں نے کوئی اقامہ جن کے ہیں, مجھے بتائیں کہ دبئی کا ویزا تو ہمیں ایئرپورٹ پہ مل جاتا ہے, تو ان کو اقامے کی کیا ضرورت؟ 3 کروڑ کی پراپرٹی لیں, آپ کو 3 سال کی ریزیڈنس مل جاتی ہے وہاں پہ. تو اقامہ ہولڈرز جو سارے ہیں, یہ وہاں بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر, ان کو تو نیب کو فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے ان پہ. یہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ, آسما جہانگیر جیسے لوگ, یہ جو نیریٹو دے رہے ہیں, یہ اتنا, یعنی مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس ملک کو, یہ ملک آگے بڑھا ہے جمہوریت کی طرف. لوگوں کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ حوالہ دیتے ہیں 90s کا کہ جی ایک پرائم منسٹر گھر بھیج دیا, نظام لپیٹ دیا, دوسرا بھیج دیا, نظام لپیٹ دیا. تو اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نظام موجود ہے وہاں پہ, نظام تو نہیں ہٹا, پرائم منسٹر بھی انہی کا آیا ہے. آپ نے بالکل ڈیمانڈ نہیں کی کہ اسمبلیاں توڑیں, الیکشن کرائیں. میں بالکل آپ سے میں یہی آگے بڑھانے لگا تھا کہ دیکھیں 90s کے اندر ہوتا کیا رہا تھا کہ ہماری گورنمنٹس آئیں, ڈیموکریٹک گورنمنٹس گورننس میں بھی فیل ہو جاتی تھی, کرپشن بھی بڑھ جاتی تھی. وہ لوگ ان سے تنگ آتے تھے, لوگ دیکھتے تھے کہ جی یہ چینج آنا چاہیے, وہ اس کے بعد وہ ان کو ہٹا کے, وہ 52B تھا, پریزیڈنٹ ہٹا کے دوسری گورنمنٹ لے آتا تھا. 52B لگائی ہے. اچھا, تو یہ اس میں چینج ہوتی رہی. اس کے اوپر یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ اگر بری گورننس ہوتی ماضی میں تو کیا بہتر یہ تھا کہ اس کو چلنے دیتے اور وہ آگے الیکشن میں ہارتا اور پھر وہ ان کو چینج آ جاتا. یعنی ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے جانے اور دوسری ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے آنے سے کوئی سازش نہیں ہے ڈیموکریسی میں. اٹلی کے اندر 40 گورنمنٹ 40 سال میں گئی ہیں,
कई दफा 3-3 महीने में गवर्नमेंट्स गई है सिस्टम डेमोक्रेटिक, चलता रहता है वहाँ। एज लॉन्ग एज तुम डेमोक्रेसी को चलने दो। जो वो बात जिधर ठीक कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जगह मिलिट्री रूल नहीं आना चाहिए, ये ठीक है बात, बिल्कुल सही। अच्छा अब इसको साजिश कहना कि पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस चला, उसके अंदर इलेक्शन हुए जिसके अंदर 22 जमातों ने कहा धांधली हुई, हमने कहा कि अगर धांधली हुए तो तफ्तीश हो, 4 हल्के मांगे, कौन सी इसमें गलत बात कही? तो आपने नेशनल असेंबली में जो स्पीच की थी, नेशनल आपने कहा हम आपके साथ असेंबली काम गया, करने के लिए सुप्रीम तैयार हैं। नेशनल असेंबली गया, सुप्रीम कोर्ट गया, इलेक्शन कमीशन के पास गया, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के पास गया, जब नहीं इंसाफ मिला 1 साल के बाद तो तब सड़कों पे प्रोटेस्ट की। ये जमहूरी अमल है, कहते हैं वो भी साजिश है। ये जमहूरी अमल का सबसे बड़ा हिस्सा, सारी दुनिया के अंदर पब्लिक निकलती है। अच्छा कहते हैं डेवलपमेंट रुक गई, वो कहते हैं आपके उस धरने की वजह से हम पाकिस्तान को सुपर पावर बनाने लगे थे, लेकिन आपके धरने की वजह से नहीं बना पाए। यानी कि क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो धांधली करने दो इलेक्शन में, यही हो गया ना। हम अगर मुझे ये बताएं, साफ और शफाफ इलेक्शन से जमहूरियत मजबूत होती है, ये कमजोर होती है? सबको पता है मजबूत होती है। अच्छा फिर पैनमा का आ गया, ये सबको पता है। अब पैनमा में सारी पार्लियामेंट्री पार्टीज ने, ऑपोजिशन ने कहा कि जवाब दो, ये जमहूरियत में होता है जो डेविड कैमरॉन से मांगा, ये कौन सी साजिश है? जब जवाब नहीं दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट में गए, जहाँ से रिजेक्ट हुई थी पहले, रजिस्ट्रार ने पहले रिजेक्ट की, हम सड़कों पे निकले, हमने एहतजाज किया कि ये पकड़े गए हैं। और वो भी क्लैरिफाई कर दें, जज ने आपको और दोनों फ्री कैन को बुलाया था, वो भी आपका बयान बाय द वे बड़ा उन्होंने किया है उसको मिसकंस्ट्रक्ट करके। खान साहब ने क्लेम किया कि मुझे पर्सनली फोन किया जजेस ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जनाब यहाँ आके ये है फोरम, और हमने अपना जो 2 तारीख का शटडाउन था वो खत्म किया और हम सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ब्रेकिंग और हमें लोगों ने बुरा भला कहा कि जी यू टर्न कर लिया है। जमहूरी अमल था सुप्रीम कोर्ट में आना। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच बैठे, उसके बाद 60 दिन का जेआईटी बैठी, उसके बाद सारी कौम के सामने बेनकाब हुई, करप्शन, झूठ, पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाना, वो बेनकाब हुआ, पर्जरी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ, जालसाजी, ये सारी चीजें सामने आके, और ये अस्मा जहांगीर जैसे लोग कहते हैं कि ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। जमहूरियत तो चल रही है, ये कर रही हैं, ये हमजा, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। ये जो कर रही है, ये इस तरह अस्मा जहांगीर जैसे लोग हैं, ये वो जुबान इस्तेमाल करते हैं कि जनाब एक करप्शन आने दो, मुल्क तबाह होने दो, मुल्क मकरूज होने दो। आज बच्चा बचा पाकिस्तान का, ये जो जब से हमारी जमहूरियत आई है, जब से ये मुकमुका करके इन दोनों पार्टीज ने करप्शन किया है, 35,000 रुपया था हर पाकिस्तानी पे कर्जा, आज 1,25,000 रुपया कर्जा है। 35 अरब डॉलर इन्होंने लिए, लेकिन अच्छा अब ये अस्मा जहांगीर जैसे लोग कहते साजिश हो गई, ये मुल्क तबाह हो रहा है, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही है, डेफिसिट बढ़ रहे हैं, और ये हम बैठ के कह रही हैं निजी साजिश। वो आदमी पकड़ा गया रंगे हाथ करप्शन में, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार मौका दिया, जेआईटी बनाई कि जनाब हमें अपनी सफाई पेश करो। जल्दी से 2 चीजें बड़ी यहाँ मैं पूछना चाहूंगा। एक तो अकामे की वो बात करते हैं कि वो अकामे के ऊपर जब मुझे मेरे वो पहले तो पूछते हैं हमारे पे इल्जाम क्या है 1.5 साल बाद, फिर वो कहते हैं कि जी मेरे बेटे अकाउंट से तनख्वाह ना निकालने की वजह से एक अकामे पे मुझे कर दिया। बात पनामा से शुरू हुई थी और अकामे में खत्म हुई। सो दे ट्राइंग टू से 30 साल से लोगों को पागल बना रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इश्तिहार पब्लिक पैसा खर्च करके बचते आ रहे हैं। इनकी बिजनेस थी करप्शन। ये जो इनका सारा सेटअप था, 10 कंपनियां बाहर, हुदैबा पेपर मिल यहाँ, चौधरी शुगर मिल यहाँ, ये सारी मनी लॉन्ड्रिंग की इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था। नैब के अंदर अब जा रहे हैं, जो अब वो नैब, और इनको अभी तक हुदैबा पेपर मिल का फाइल कर देना चाहिए था, जो अब तक क्यों नहीं इन्होंने नैब के सामने फाइल किया, क्योंकि वो एक करप्ट वो गॉडफादर गया, उसकी सारी करप्ट टोला बीच में आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि ये भी जंग चल रही है आपकी? जंग तो मैंने आपको कहा कि जंग तो खत्म तब होती है जब आखिरी गेंद। ठीक है, और एक शॉर्ट सा कमेंट आपका चाहिए। ये जो
क्या ये हुस्न इत्तफाक है कि भारत का भी वही नैरेटिव है, जियो का भी वही नैरेटिव है, आसमा जहांगीर लॉट का भी वही नैरेटिव है, और शरीफ फैमिली का भी वही नैरेटिव है, और रिपीटेडली इंडिया का भी यही नैरेटिव है गवर्नमेंट का? कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो। जो ये मेरे मुतल्लिक कह रही है आसमा जहांगीर, वो इंडिया मेरे मुतल्लिक कह रहा है। जो ये फौज के मुतल्लिक कह रही है, वो इंडिया भी फौज के मुतल्लिक। जो ये नवाज शरीफ के मुतल्लिक कह रही है, वो फौज भी कह रही, वो इंडिया कह रही है। इसका मतलब ये है कि इनका नैरेटिव, और या तो कहते हैं इंडिया हमारा दोस्त है, नरेंद्र मोदी हमारा दोस्त है, वो हमारा बड़ा खैर ख्वाह है, या तो ये मान ले इंडिया हमारा खैर ख्वाह, वो जो गवर्नमेंट कश्मीर में कर रहा है वो कोई बुरी चीज नहीं कर रहा ठीक है। वहाँ, और जो हर जगह फोरम पे पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश करता है, हर जगह ये जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में है, जो टीटीपी की है, जो कराची में, जो सारी दुनिया को पता है, जो बीबीसी ने कहा, उस पे कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीबीसी ने कहा, हमजा, बीबीसी ने कहा, गार्डियन अखबार ने कहा कि एमक्यूएम को ट्रेनिंग मिलती थी इंडिया रॉ से, ये मुस्तफा कमाल ने आके कहा कि हमें रॉ के एजेंट्स करते थे, तो ये तो कोई, यानी ये हमारे सारे, ये दहशतगर्दी हमारे, ये हमारे खत्म हो गए हैं। तो ये सारा जो नैरेटिव ये बिल्डअप हो रहा है, और नवाज शरीफ का ये जो सारा जो डॉन लीग्स थी, यही वही चीज है जो आसमा जहांगीर बात कर रही हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरियत की आड़ लेके, और ये हमारी मुल्क की तबाही करते हैं। साजिश ये है, असल में जो साजिश ये है साजिश। साजिश ये है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाए, इस मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर लेके जाए, अपने बच्चों के नाम पे पैसा रख दे, वो सारा पकड़ा जाए, फाइनेंस मिनिस्टर वो मनी लॉन्ड्रिंग करे, चीफ मिनिस्टर वापस फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर पंजाब का वो मनी लॉन्ड्रिंग में, हुदैबा पेपर मिल में हो, ये जो नेशनल बैंक सबसे बड़े बैंक का हेड, वो उसका नाम मनी लॉन्ड्रिंग में हो, और इनके खिलाफ एक्शन लो तो पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ। ठीक है खान साहब, मैं अब जरा उस इशू पे आना चाहूंगा जिस पे मुझे पता है आप बात करना मुनासिब नहीं समझते। आई एम टॉकिंग अबाउट आयशा गुलाला। आपने कल भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं इस बारे में बात करना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि खवातीन का बहरहाल एहतराम हमारी सोसाइटी में है, लेकिन खान साहब ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि वुमेन हरासमेंट की एक मॉकरी बना दी गई। आज एक बड़ी अच्छी खातून है जो कोई राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि शी हैज़ मेड अ मॉकरी आउट ऑफ वुमेन हरासमेंट। अब जो बेचारी कोई असल में हरास होगी वो भी आने से कतराएगी। दूसरी चीज़ जो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि वो सारी खवातीन जो उस सियासी पार्टियों में, सब में, नून में भी हैं, एमक्यूएम में भी हैं, बाकी सारी पार्टीज में भी हैं, उनके ऊपर भी अब उनके घर वाले सवालिया निशान उठाना शुरू कर देंगे, तो बाकी खवातीन के लिए आपको इस बात पे जरा थोड़ा सा कमेंट करना पड़ेगा। सवाल मेरा ये है, आपके ऊपर केसेस जजेस के कमेंट से ये लग रहा है, जितने आप पे डाले थे मनी ट्रेल के, बनी गाला के, पार्टी फंडिंग के, बाकी फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे, कमेंट से ये लग रहा है कि वो केसेस 50% चांस लग रहा है कॉश होंगे, जो अकरम शेख से भी मुकालमा हुआ। अब लगता ऐसे है कि नून लीग ने, शरीफ फैमिली ने अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाल दिए, और वो है औरत कार्ड, जो बड़ी ट्रेजेडी है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। बट लेट मी अश्योर यू दे विल टेक इट टू द लास्ट, जहां तक वो लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। देखिए हमजा, पहले तो ये आपने 50% का मेरे फ्लैट का वो जो भी सुप्रीम कोर्ट में केस है, और फिर पार्टी की फंडिंग का आपने कहा 50% चांस नहीं, 99% चांस है। ग्रेस मार्क दिया, यानी वो फिर कहेंगे आपको जजमेंट पहले से पता लग गई, आप वो फिर कहेंगे साजिश है। जो उन्होंने चीजें कही, अल्लाह का करम है, यानी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझे 40 साल पुराना वो मिल जाएगा, वर्ल्ड सीरीज कैरी पैकर का 40 साल पुराना, मैं 24 साल का था, मुझे वो भी मिल जाएगा, मुझे फ्लैट जो 33 साल पहले लिया था उसका मॉर्गेज भी मिल जाएगा, मुझे जो वो बैंक यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी मिल जाएगी, वो 34 साल पहले जो मैंने पैसा ट्रांसफर किया उस फ्लैट के ऊपर वो कैरी पैकर का, फिर 13 साल मेरी डिवोर्स हुई है, वो 15 साल पुरानी बेचारी जमाइमा वो अकाउंट ढूंढ लेगी, मुझे नहीं पता था, अल्लाह करना, अल्लाह है, वो मुझे तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। शेख साहब ने भी अभी रिसेंटली मुकालमा यही किया कि मैंने मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया ही नहीं, अच्छा पे इसलिए मेरे पास सबूत ही नहीं है, तो वो भी तो फिर क्या इल्जाम क्या था? अच्छा फिर ये फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग का भी केस 40,000 लोगों के हमने ढूंढ लिए हैं। मैं चैलेंज करता हूं
ये दोनों पार्टीज, दोनों मेन पार्टीज, ये जरा अपने फंड्स दिखाएं, आप हमारी बुक्स देखें, 40,000 फॉरेन लोगों ने जिन्होंने पैसे दिए उनके हमने नाम पता निकाल लिए हैं। ये कोई कर सकता है? तो इंशाल्लाह वो भी फ्लॉप हो गया। अच्छा अब ये अब वो एक फाइनल कार्ड आ गया है जो बड़ी बदकिस्मती है। खान साहब, मैं बड़ा दिल पे पत्थर रख के पूछ रहा हूँ ये। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस। ये बड़े घटिया लोग हैं, इनकी तारीख है, इन्होंने, मुझे याद है, हालांकि बेनज़ीर की मैं सियासी मुखालत था, मेरी यूनिवर्सिटी में उनसे दोस्ती थी, हम करीब थे, उससे बाद भी मेरा उनसे बड़ा अच्छा था जब तक वो इख्तलाफ हुआ सियासी उनके साथ। इन्होंने 86 से जो नुसरत भुट्टो और जो बेनज़ीर से किया वो सबके सामने है। इन्होंने जमाइमा से जो किया, इन्होंने जो सीटा वाइट को घसीटा, इन्होंने कभी जब इनको मौका मिला है इन्होंने इतना नीचे गिरे हैं। आप इनकी तारीख उठा के देख लें, पैम्फलेट्स फेंके थे, यानी ये इतना नीचे गिरते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया है, और इसमें मुझे आयशा पे इसलिए अफसोस है कि वो इस्तेमाल हुई हैं। मुझे पता है ये सारा कुछ क्या हुआ, मैं इसके ऊपर इसलिए अगर मैं मजीद बात करूंगा उनकी ज़िंदगी इसके बाद भी होगी, ये तो इंसिडेंट चला जाएगा ना, तो उनकी सारी ज़िंदगी इफेक्ट होगी, इसलिए मैं उनके ऊपर बात नहीं करूंगा। मैं खुश ये हूँ कि नए प्राइम मिनिस्टर ने आते साथ ही पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी है। बाकी यानी और दुनिया पाकिस्तान में कोई मसले नहीं थे कि किसी तरह इमरान पहला हुक्म जारी किया उन्होंने, पहला हुक्म माशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने, इमरान खान को पकड़ा जाए, उन्होंने कमेटी की। मैं इसको वेलकम करता हूँ, बजाय मैं बैठ के कहूँ। अच्छा, आई थॉट यू वुड बी लाइक कि ये क्या कमेटी बनाई है। मैं इसको वेलकम करता हूँ, बजाय मैं सफाइयाँ पेश करूँ, ये था वो था। मुझे पता है मैंने कोई गैर मुनासिब टैक्स उससे नहीं की। मैं क्लियर मैंने देखें, मैंने टैक्स, मैं अपनी सारी पार्टी की लीडरशिप, एक वक्त छोटी पार्टी थी, मैं सब पे ऑन टैक्स होता था। बिल्कुल। मैं अपने वर्कर्स जो अच्छे काम करते थे उन पर टैक्स होता था। अब अल्लाह का करम है, पार्टी इतनी बड़ी बन गई, मैं सारों से नहीं कम्युनिकेट कर सकता, लेकिन मैं अपनी भी फिर भी जो मेरे परफॉर्मर्स हैं मैं उनकी तनकीद भी करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। मैं ये इन्होंने जो कमेटी बैठाई है, मैं दावे से कहता हूँ ये कमेटी बैठे, कोई गैर मुनासिब टैक्स मैंने नहीं की, उसको चीजें निकलेंगी। मैं ये चाहता हूँ कि सारी इसके अंदर पूरी सही तरह इसके अंदर आयशा का सारा वो जो भी वो कहती है कि उनकी जो उनकी टेक्स्ट हुई है सारी, जो हमारी टैक्स एक्सचेंज हुई है वो सारी सामने आई। मैं ये भी चाहता हूँ कि अमीर मुकाम की इस दौरान के अंदर जब एकदम 4 महीने के बाद उनको पता चला क्या उसकी भी टेक्स्ट, उनकी आयशा गुलाले उनके वालिद साहब की जो कि डील कर रहे थे वो भी सामने आए, मीर शकील रहमान की भी टेक्स्टें देखी जाए, क्योंकि अगर आपने इंक्वायरी करनी है ना तो पूरी तरह करें कि ये हुआ क्या है कि 4 साल पहले नहीं, 4 साल पहले की कोई टेक्स्ट आज आपको आ जाती है और इसमें आप बड़े गलत इल्जाम लगाते हैं। और मुझे अफसोस ये है कि लोग हमारी तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इनकरेज करती है ख्वातीन को। कई हमारी ऐसी ख्वातीन हैं जो आउटस्टैंडिंग है, इंशाल्लाह उनके बड़ी जबरदस्त ऊपर जाएंगी, आगे जाकर खड़ी हो रही हैं, उनसे यंग उनसे ख्वातीन है। मैं मसलन नाज बलोच थी, मुझे अफसोस है कि वो छोड़ के गई, लेकिन उनसे उन्होंने मैं ये कह रहा हूँ वो नैरेटिव नहीं अपनाया। मैं 6 साल वो मेरे से टैक्स एक्सचेंज होते थे, वो छोड़ के गई हैं, उन्होंने नहीं कहा कि कोई गैर मुनासिब टैक्स भेजी गई है, हालांकि वो दूसरी पार्टी पे गई है, गुस्से में गई हैं। मैं ये इंशाल्लाह मैं ये चाहता हूं कि ये प्रोब भी हो मुझे, और प्रोब इसलिए हो कि सामने आए कि हम अपनी औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं अपनी औरतों की, मैं चाहता हूं कि मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी में औरतें आई हैं, पहली दफा जलसों में पार्टिसिपेट। मियां वाली जैसे शहर में मुझे याद है, जैसे शहर में सारी पहली दफा जलसों में आपके औरतें सारी देहातों के अंदर, सरगोदा में हमारा जलसा हुआ, कभी इतनी ख्वातीन हमने नहीं देखी। ये पॉजिटिव कि औरतें, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, नेशन बिल्डिंग में वो पूरी तरह हमारे साथ हों, ये बड़ा गलत कार्ड। और इसके पीछे ये नून लीग है, इसके पीछे ये बड़ा गिरा हुआ, ये बड़ा गिरा हुआ शकील रहमान अपना अखबार इस्तेमाल कर रहा है,
یہ جنگ اور جیو گروپ کو استعمال کر رہا ہے. اس نے کہہ بھی بیٹھا ہے کہ میں تو بزنس مین ہوں, میں تو اپنے پیسے, بزنس کا مطلب پیسہ, صحافت میں نہیں جانتا. بزنس بچانے کے لیے ہر نیچے حرکت پہ جائے گا انشاءاللہ. میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے مجھے اس میں سے بڑی اچھائی نظر آ رہی ہے. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ الحق ہے, سچ نکلے گا اس میں سے. مجھے صرف افسوس یہ ہے کہ یہ استعمال ہوئی ہے یہ خاتون, اور اس کے آگے اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ابھی مزید ڈسکس کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ خان صاحب پی ٹی آئی اپوز کریں گے کمیشن کو, اس کو بائسڈ قرار دیں گے, اس کو ریجیکٹ کریں گے, لیکن خلاف توقع جو ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ویلکم کرتا ہوں, بالکل بننا چاہیے کمیشن. تو ابھی بریک کے بعد آ کے ذرا مزید جو ہے وہ ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. آپ دیکھ خلاف توقع پی ٹی آئی اور خان صاحب کہتے ہیں جی ہم ویلکم کرتے ہیں کمیشن کو. تو یہ بڑی سرپرائزنگ بات ہے خان صاحب. لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے تاریخ دیکھی نون لیگ کی بھی, شریف فیملی کی بھی, کہ نقل کر کے جعلی ڈاکیومنٹس دینے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مہارت تھی لیکن نہیں تھی, کیونکہ وہ فونٹ بھی غلط یوز ہو گیا, نوٹری سٹیمپ غلط تھی. لیکن بہرحال آج میں اگر اینڈرائڈ مارکیٹ پہ ٹائپ کروں فیک میسیجز تو کوئی لٹرلی 500 سافٹ ویئرز ہیں جو مجھے بنا دیں گے فیک میسیج, کسی بھی نمبر سے بنا دیں گے. آئی فون کی مارکیٹ میں موجود ہیں, اس طرح پرو لیول پہ بڑے سافٹ ویئرز موجود ہیں. تو مشکل نہیں ہے کہ میں ایک فیک والا بنا کے جو ہے میں آپ کو پریزنٹ کر دوں کہ جی یہ دیکھیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, ان کی ساری تاریخ ہے, یہ ان کی ساری کمپنیز جعلی تھیں. وہ صرف یہاں سے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے شیل کمپنیز بنی تھی. انگلینڈ میں 10 کمپنیز ہیں, بچے اربوں پتی بن گئے. 650 کروڑ روپے کے گھر میں حسن شریف رہتا ہے, بالکل, اور کمپنیز نقصان کر رہی ہیں. اسی جعل سازی پہ یہ میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. یہ لائیں گے میسیجز کی لسٹ لائیں گے بنا کے, آپ ہی کے نمبر سے ہوں گے وہ. اور میں ویورز کو بتانا چاہتا ہوں پلیز اپنی پلے سٹور پہ یا ایپل پہ جا کے لکھیں فیک میسیجز. میرا 10 سال کا نیفیو بنا لے گا وہ فیک میسیجز. پھر کیا ہوگا خان صاحب؟ دیکھیں بریکنگ نیوز آ جائے گی جنگ پہ. ایسے نہیں ہوگا, اتنے تو بیوقوف نہیں ہے. میں نے ان کو جوڈیشل کمیشن میں نے دیکھا, انہوں نے الیکشن کمیشن کے بعد جعل سازی کر رہے تھے, وہاں جعلی ڈاکیومنٹس پروڈیوس کر رہے تھے. پھر میں نے سپریم کورٹ میں دیکھا جعلی ڈاکیومنٹس پروڈیوس کر رہے تھے, وہ پکڑے ہی گئے. وہ پکڑے کیسے گئے کہ وہ جو فونٹ کا وہ جو کیلیبری جس کو وہ رانا فونٹ کا خیال رکھیں, رانا اسلام کہتے ہیں کیلیبری فون, تو وہ وہاں بھی پکڑے گئے. لیکن ہم ایک پورا اس کے اوپر obviously اس طرح تو نہیں کریں گے, ان کے اوپر چھوڑوں گا میں جنہوں نے کبھی کوئی سیدھا کام ہی نہیں کیا. ہم بٹھائیں گے ایک فورینسک ایکسپرٹ, جو جس کو پتا ہوگا, یہ سارا جو سمجھتا ہوگا, اس کے سامنے سب کچھ ہوگا, اور ساری ٹیکسٹ ہوں گی, ان کی ساری ٹیکسٹ ہوں گی جو وہ کہتی ہیں, میری جو وہ مجھے کہتی ہیں ٹیکسٹ, وہ ساری ہوں گی. یہ ضرور ہے, ہم یہ بھی چاہیں گے کیونکہ پورا اس کے نیچے ڈیپتھ تک پہنچے. امیر مقام کی, ان کے والد کو, ان کو کیا ٹیکسٹ گئی ہیں, کیونکہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ جس طرح یہ ہوا, یہاں پیسہ بدلا گیا, پیسہ ہاتھ چینج ہوا ہے. انہوں نے یہ پہلے نہیں کیا. یہ جو شکیل الرحمان کر رہا ہے, یہاں پیسہ چل رہا ہے ایڈز کے نام پہ, یہاں چلا رہے ہیں, تو وہ ہم پورا کریں گے. وہ انکوائری ہونی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے, جینوئن انکوائری ہونی چاہیے, ان کی جعلی انکوائری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, سو اف آئی ہیو گاٹن اٹ رائٹ, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگریڈ جو فورینسکس ایکسپرٹ ہے, آپ اپنا بھی ڈیٹ سارا کرنے کے لیے تیار ہیں دینے کے لیے, آپ سب دیں گے؟ نہیں, ان کے وہ کہہ رہی ہیں نا, وہ اس کے پاس ہے. اچھا, وہ تو کہہ رہی, وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے ان کو ٹیکس کی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہیں انہوں نے دکھا بھی دیا حامد میر صاحب کو, تو بڑا اچھا ہے نا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری وہ جو بھی ٹیکس انہوں نے دکھائی ہوں گی, میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی غیر مناسب ٹیکس نہیں بھیجی ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فورینسک کے سامنے بیٹھے ساری اپنی ٹیکس دکھائیں جو انہوں نے بھیجی ہیں اس کے, اور پھر آگے بھی جائیں. یہ ہوا کیوں ہے 4 سال کے بعد, کیوں یاد آ گیا؟ یا تو فورینسکس کے دکھائیں, یا پھر آپ بات یہ ہے کہ کاغذوں پہ نہ تنگ کریں. نہیں, وہ تو خیر ایسے, یہ تو یہ اپنے آپ کو کیونکہ میں بھی گواہ ہوں. لیٹس ناٹ بیکم نیوٹرل. میں بھی گواہ ہوں, یوم تشکر پہ میں موجود تھا, سٹیج پہ خاتون بیٹھی تھیں, اس وقت تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. اگلے دن وہ خود ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ جی میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ایز اے, شام کو آ کے NA1 کے. یہ سب سے زیادہ میرے خیال ہے مسئلہ خواتین کے لیے ہونا چاہیے کہ ان کا زیادہ بدنام ہو رہا ہے نام, بجائے کہ
किसी और चीज के ऊपर मुझे बड़ा फख्र है हमारी जिस खड़ी हुई हैं सारी ख्वातीन ने इसको कंडेम किया है। वो जानती हैं सारी हमारी महज़ब माशरे की घरानों की औरतें हैं और जो के दिल से नजरियाती तौर पे नेशन बिल्डिंग में से निकाला था ख्वातीन को। भाई कायदे आज़म भी कहते थे कि ख्वातीन को पार्ट होना चाहिए। मुझे इस तरह के ड्रामे हैं जो, क्योंकि मैं इसलिए ड्रामा कह रहा हूँ, प्रूफ नहीं आया अभी तक। क्या वो सारी चीज को डैमेज नहीं करते? डैमेज ये बल्कि औरतों के कॉज को स्टिग्मेटाइज्ड एक सोसाइटी थी। ये औरतों के कॉज को डैमेज किया। और दूसरी चीज जो ये बड़ी जल्दी ये नए प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पे कमेटी बना दी। मुझे पता है ये असेंबली में बैठा हुआ था जब ख्वाजा आसिफ ने ट्रैक्टर ट्रॉली का एक हमारी एमएनए को, क्या इनको सारे दांत निकाल रहे थे, कोई शर्म नहीं आई इनको? और मजे की बात उनकी ख्वातीन भी दांत निकाल रही। मैं ये कह रहा हूं कि इनको शर्म नहीं आई तब कि किसी भी वेस्टर्न डेमोक्रेसी छोड़े, हमारा तो तहजीब और है, हम तो औरतों की इज्जत करते हैं। मगरबी डेमोक्रेसी में वो कभी मुंह नहीं दिखा सकता था पब्लिक में अगर कोई करता। फिर उसी ने ख्वाजा आसिफ ने वजीर रह चुकी हैं, फिरदौस आशिक अवान वजीर रह चुकी, उनको डंपर जैसी बात की और ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह की बातें की। क्या ये मजाक है इनका? क्या इनको कोई औरतें जागी नहीं हैं कि कोई इनको शर्म नहीं आई कि इंक्वायरी नहीं बैठाई? वो कहते हैं आयशा गुलालाई हमारी बहन है, हम उनकी इज्जत करते हैं और हम उनको इंसाफ दिलाएंगे। ये इसलिए मैं कहता हूँ हमजा, मैं इसलिए कहता हूँ कि इनसे गंदे लोग इंशाल्लाह मेरा अल्लाह ने ये जितना ये करते हैं ना यानी मेरा अज़म उतना मजबूत होता है कि मैंने एंड तक, जब तक मैं जिंदा हूं, मैंने इनको छोड़ना नहीं है। क्योंकि ये इतने गंदे लोग हैं, ये मुल्क को तबाह करेंगे, ये मुल्क को बेचेंगे। 70 लोगों के इकामे हैं, ये असेंबली में बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करता। कि आपको शर्म नहीं आती? वजीर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, इनको शर्म नहीं आती कि ये एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती कि इस मुल्क को जिस बेदर्दी से ये लूट रहे हैं, ये जिस तरह यहाँ का पैसा चोरी करके बाहर लेके, इनको ना कोई गरीब नजर आता है, ना कमजोर, ना कोई बेरोजगार नजर आता है, इनको सिर्फ पैसा नजर आता है। और उस पैसे के लिए ये जो भी हर नीची हरकत करने के लिए तैयार। ठीक है, आपने भी, आपका ईमान है, तो मैं जरा उस ईमान और स्पिरिचुअलिटी को भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि मैं आपको भी जरा 3, साढ़े 3, पौने 4 साल से जानता हूँ। मैंने इन पौने 4 सालों में आप में एक बड़ा चेंज देखा है। इससे पहले आपकी एक बड़ी डिफरेंट जिंदगी थी, उससे पहले आप एक पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के कुछ टॉप स्टार्स में शुमार होते थे। वो क्या कर्व था, वो कौन सा मोमेंट था जब आपका रुझान चेंज हुआ, ये मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन इससे पहले खान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंटेबिलिटी। आपका नारा है अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, रूथलेस एहतसाब इज व्हाट यू स्टैंड ऑन, इसलिए हेंस तहरीक इंसाफ। केपी के अंदर, बाकी मुल्क की तो हम डिस्कस करते हैं, केपी के अंदर मुझे याद है शुरू में एक वो लहर चली थी कि मिनिस्टर भी आपने पकड़ लिया, एक अपना डीजी भी पकड़ लिया, उसके बाद वो कोई ठंडी हो गई, वो इदारा बन नहीं पाया, मसाइल हायल हुआ क्या? क्योंकि केपी में वो एक, लेट्स एडमिट इट, नहीं उस तरह मिसाल बन सकी जो एक शाइनिंग मिसाल होती है। मैं मानता हूँ जिस तरह का हमें एहतसाब करना चाहिए था हम नहीं कर सके, और मैंने इससे बड़ा सीखा कि क्या गलतियां हुई। देखिए, एक टीम भी होती है ना, क्रिकेट टीम, एक इंसान भी होता है, प्रोग्रेस करने के लिए आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो हमारे से गलतियां हुई उसको सेटअप करने के लिए एहतसाब सेल को, उससे मैंने बड़ा सीखा। वो एक नया एक्सपेरिमेंट था, वो कई हद तक कामयाब हुआ। जो हमारे एक इंडिपेंडेंट एहतसाब बना, उसने किया क्या, उसने तहरीक इंसाफ के वजीर को पकड़ लिया आते साथ ही, उसका एक पैगाम गया, सब डरे। अभी तक आपको कोई बड़ी वजीरों की करप्शन नहीं मिलेगी, छोटी छोटी मैं सुनता रहता हूं, जो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं और बहुत सारे लोग हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं ना कि वो तो पिछले 10 साल में बड़ी करप्शन हुई है वहां, हमारा उन्होंने उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं, क्योंकि पीछे भी बहुत बड़ी करप्शन हुई है, वो नहीं पकड़ सके। लेकिन मैंने सीखा है उससे। मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि वो जिस तरह का सेटअप था वो नहीं चल सका। वो एहतसाब कमिश्नर और डीजी साहब के बीच में हो गया, फिर नैब तरफ चल रही है, प्रोविंशियल नैब एक तरफ वो चल रहा है, वो भी हमें, तो उससे मैंने सीखा बड़ा। लेकिन मैं मानता हूं कि एहतसाब वो नहीं हो सका, उसके बावजूद करप्शन नीचे आ गई एक पकड़ने से। इससे सबक हमें क्या मिलता है? आपने जिस दिन इस मुल्क में करप्शन खत्म करनी है,
बड़ी करप्शन, देखिए छोटी करप्शन देर लगती है, बड़ी करप्शन जिस तरह आपने खत्म करनी है, आप ऊपर के लोगों को पकड़ें, आप बड़े वजीरों को, आप जब उनको हाथ डालेंगे ना नीचे, फिर और सारा असल पैसा तो ऊपर से बनता है। अब ये जो इकामे हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग है, अब सोच लें सारे जेलों में जो आपके लोग पड़े हुए हैं, जो छोटे चोर पड़े हुए हैं, भरे हुए ना जेल चोरों से, उन सारे चोरों की मिला के भी एक इनके लंदन का बड़ी प्रॉपर्टी जो है शरीफों ठीक है। उसकी मिला के भी चोरी उतनी बनती है। ठीक है। लिहाजा अपने मुल्क को ठीक करना, ऊपर की चोरी पकड़े। अब आपको लगता है कि when स्पेशली इंशाअल्लाह। अगर आपकी हुकूमत कल आती है तो अब आप उस पोजीशन में हैं इंशाअल्लाह जो अब मैंने सीखा है, बड़ी चीजें सीखी है। मैं एक तरह अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अगर हम इक़्तिदार मिल जाता 2013 में, तो जिस तरह का मैं रिफॉर्म प्रोग्राम सोच रहा था वो मुझे होना नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था उससे। क्योंकि नहीं मुझे समझ, कई चीजें मुझे आहिस्ता, जब केपी से मैंने कई चीजें सीखी हैं। और मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जो मैं कई दफा समझता था ना कि बड़ा मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है। मैं आपको यकीन, मुल्क बड़ी जल्दी ठीक होगा। जो मैंने रियलाइज किया ये इतना बड़ा तो मुश्किल काम मतलब नहीं ये है। कहना गलत नहीं होगा कि आपका पहला मैनिफेस्टो होगा अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टॉप ब्रास। देखिए जी, अकाउंट, आप अगर बड़ी करप्शन को हाथ नहीं डालेंगे, पाकिस्तान वायबल ही नहीं है। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, हम कर्जों में डूब गए हैं। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है पूछना, क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम रहता जा रहा है, कि जो लोग बाकी पार्टियों से, और ये बहुत दफा पूछा जाता है आपसे, आई एग्री विद दैट, बट ये जितनी दफा पूछा जाए उतना कम है। बाकी पार्टियों से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो इससे पहले स्टेटस को का हिस्सा रहे हैं और उनको बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रखा जा रहा है, उनको मीडिया में भी प्रेजेंट किया जा रहा है। उनमें से कई लोगों पे इल्जामात की हद तक बड़े बड़े इल्जामात हैं करप्शन के। सो व्हेन यू से अकाउंटेबिलिटी, डू यू आल्सो से अकाउंटेबिलिटी विद इन पीटीआई एंड आउटसाइड पीटीआई आल्सो? देखिए अकाउंटेबिलिटी होती कैसे, कभी भी किसी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी नहीं होती अगर आप ये समझें कि जनाब हमने 1000 टिकट देने हैं, 1000 फरिश्ते मिल जाएंगे, वो आएंगे, मुल्क ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं अकाउंटेबिलिटी होती। आज अगर आप मगरिब के अंदर उनके जो इदारे हैं इंसाफ के, एहतसाब के, अगर वो इतने मजबूत ना हो, मगरिब में पाकिस्तान से ज्यादा चोरी हो। ये नहीं कि हमारे लोग ठीक नहीं है, जब आपके इदारे ठीक नहीं होते, आप जो मर्जी कर लें, आप चोरी नहीं खत्म कर क्या सकते। इमरान खान ऐसे- मैं कंप्लीट करूं, देखो मैं आपको उल्टी मिसाल देता हूं। आसिफ जरदारी के नीचे और नवाज शरीफ आप फरिश्ते रख दें, चोरी नहीं रुकेगी। जब क्योंकि खुद करप्ट हैं, ये इदारों को नहीं ठीक होने देंगे और फिर चोरी रोक नहीं सकते। चोरी रुकेगी जब अगर इमरान खान आए, और इमरान खान ऐसे तकड़े इत्तेसाब के इदारे, FIA, NAB, SCCP, ये स्टेट बैंक, जो इदारे कंट्रोल करते हैं, आप इनके ऊपर मेरिट पे काबिल, जिस तरह हमने दुरानी साहब को लेके आए, IG जो थे हमारे, एक काबिल आदमी को लेके आए, Within 3-4 years पख्तूनख्वा transform की कर दिया, पुलिस no doubt about साली it. पुलिस बन गई No है, doubt about it. काबिल आदमी लेके आए, उनके ऊपर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करी, इदारा बनाया, मेरिट पे लोग लेके, आज पुलिस देखे, कंपेयर करें बाकियों से। उसी तरह सारे इदारे आप ठीक कर सकते हैं, मेरिट के ऊपर तकड़े लोग लेके आए, जो उनको एम्पावर करें across the board। आप मुझे ये बताएं, सिंध के अंदर इन्होंने AD ख्वाजा, एक अच्छा भला इन्होंने IG तो सारे ले लिए उससे इख्तियार। AD ख्वाजा को लेके आए, सिंध का IG, नीचे सारे अपने लोग भर्ती कर दिए, वो बेचारे वो बेबस बैठा हुआ है। तो जब आप अगर ऊपर इदारे नहीं ठीक होने दे रहे हैं, क्योंकि आपने गलत काम करवाना है, तो आप जो मर्जी ले इलेक्ट करवा लें। की सारी तैनातियों के इख्तियार लेके दे दी होम मिनिस्टर को। मेरा अपना ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से रहा है। होम मिनिस्टर को क्या पता कि मैं ये किसको कह रहा हूँ, किधर तैनात देखो करना है। आप ये जान के इदारे तबाह करते हैं, क्योंकि सही। उन्होंने पुलिस का गलत इस्तेमाल करना होता है, झूठी FIRs करनी होती हैं, लोगों को कंट्रोल करना होता है, लोगों को मारें पड़वानी होती हैं थानों के अंदर। वो पुलिस को तबाह करने वाले तो ये बैठे ठीक है, हुए हैं। मतलब इन अ नटशेल इमरान खान साहब वो इदारे बनाएंगे जो फिर तफरीक नहीं करेंगे कि खान साहब के साथ स्टेज पे कौन खड़ा है, ऑपोजिशन में हमजा कौन। होता ही वो इदारा है जो किसके अंदर फर्क ना। आज शौकत खानम के अंदर मैं बार बार लोगों को बताता हूं, अब कितने 21 साल हो गए हैं अस्पताल को,
میں نے ایک دفعہ سفارش کی اور میری سفارش انہوں نے ریجیکٹ کر دی، حالانکہ وہ بہت بڑا ڈونر تھا ہاسپٹل کا، اس کی ماں کی اس کو ریجیکٹ کر دیا، صحیح ہے۔ ایک سفارش کی، یعنی یہ ہوتا ہے ادارہ ٹھیک ہے، جو سب کے لیے قانون رکھتا ٹھیک ہے خان صاحب 3-4 منٹ رہ گئے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں I've been noticing that about you for a brief period of time but I know کہ یہ ٹرانسفارمیشن بڑے عرصے سے چل رہی ہے، آپ کی سیاست میں بھی اب ریلیجن کا، اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، اسلام کا ذکر اب وہ بڑھتا بھی جا رہا ہے۔ اگر کمپیئر کریں آپ کا کون سا ٹائم تھا جب آپ میں ایمان آیا، بریفلی ذرا بتائیں۔ میں صرف یہ کہ میں کبھی پولیٹکس میں آتا ہی نہ اگر میرے میں ایمان نہ ہوتا، جب میرے میں ایمان آیا تو میں نے فیصلہ کیا میں پولیٹکس کروں گا، مجھے میرے پاس تو اللہ نے سب کچھ دے دیا تھا، یہ باقی پولیٹیشین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مجھے تو ساری دنیا جانتی تھی، میں تو پاکستان کا سب سے بڑا نام تھا، میری تو زندگی، میں تھوڑی کامنٹری کروں کروڑوں روپیہ مجھے مل جاتا تھا، مجھے کس چیز کی کمی تھی؟ مجھے لیکن کیوں میں آپ کو the kind of life that you led میں سمجھاتا ہوں نا، لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایمان جو ہے وہ آپ کو، اللہ کا ایمان آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور آپ نماز میں ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی ہیں، وہ ہے ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ہم ان کے راستے پہ جب چلتے ہیں تو وہ کوئی آرام کی زندگی گزارنے نہیں آئے تھے جو میں گزار سکتا ہوں، آج بھی گزار سکتا ہوں، وہ آئے تھے مقصد کے لیے۔ مقصد یہ ہوتا ہے اپنے معاشرے میں انصاف قائم کرو، اپنے معاشرے میں عدل قائم کرو، یعنی ایک طرف ان لوگوں کا دھیان رکھو جو بچارے کمزور ہیں، غریب ہیں، پسے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایسا معاشرے میں انصاف ہو جو طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر ہو۔ یہ ہے نٹ شیل ہماری زندگی کا مقصد۔ تو میں نے جب دیکھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے تو یہ معاشرے کے اندر ظلم اور ناانصافی ہے، میں نے تب یہ سوچا کہ میں ہسپتال تو بنا دوں گا، بنا دیا تھا، میں نے سوچا کہ ملک میں یہ تو ساری جگہ، یہ تو ہر جگہ ظلم ہے، لہٰذا میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو اللہ کا حکم ہے، اس میں کامیاب میں کوشش پوری کروں گا، کامیابی اگر اللہ نے دینی ہو دے دے گی۔ ٹھیک ہے، آخری بات، سارے پاکستان کے پولیٹیکل اینالسٹ سوچ رہے تھے، ہر حلقے میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ نواز شریف کے خلاف اپوزیشن کو متحد کریں گے، پارٹیوں کے ساتھ ملیں گے، جو سیاست ہوتی ہے ہمارے ہاں تھوڑا سا میل ملا کے، آپ نے یوم تشکر کے دن اینڈ پہ کہہ دیا زرداری اب تمہاری باری۔ کیونکہ یہ کوئی میری نواز شریف سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کرپشن کے کیس لڑائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کرپشن کی بات کرو نواز شریف کی اور آصف زرداری کی نہ بات کرو؟ ساروں سے آپ نے پنگا لے لیا۔ بہت شکریہ، عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی بات سنی، کل ملاقات ہوتی ہے، پاکستان زندہ باد۔